camera. Okay. Sorry. Prince has to come. I think so. Oh, okay. Maybe that's just. It's okay. He will come and do. This, you have to Tell me go the- little back Back, no? and down. I think much? it's zoomed out. Shall I ask somebody to call Prince? You know, I think the setting is there where we have to zoom in. Some setting he was doing that. no, just tell me. Just show me now. Just see how it is now. The problem is this is No? seen. Still it is seen. Still. Still. Oh. There is a zoom. I think zoom out happened. I'll say somebody, Prince. Oh, it's not moving at all. No. Sure. Okay. Let's start. Let's renew. आइए हम शुरू करते हैं. Okay. Is everyone ready? Okay. So we looked at the ways in which we can relate to the Holy Spirit and ways in which we should not relate to the Holy Spirit. हमने देखा कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा के साथ संबंध रखना है और किस प्रकार से उसके साथ नहीं करना है. Just give me 1 minute. Sorry. Okay. It is taking the. Okay. So any questions? I think somebody had a question. जो सवाल था बीच में आए थे, आप बात नहीं कर पाए, वो पूछ सकते हैं अभी. दौड़ के माइक दे दीजिए, थोड़ा दौड़ लीजिए. कौन क्रिकेट में तेज है देखें. पवित्र आत्मा से भरते जाओ, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने भी बताया कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, तो क्या हम एक बार में नहीं भर सकते उससे, या पवित्र आत्मा से बार बार हमें भरते रहना? जैसे वो पवित्र आत्मा से हम लोग बार बार भरने के लिए क्यों कहते हैं? जब वो एक व्यक्ति तो है तो हम एक बार में भर सकते हैं उससे. When you said that Holy Spirit is a person, why we always say that to be filled again and again with the Holy Spirit? Yeah. Yes, brother. Thank you. You can switch off that mic. Okay, so the Holy Spirit is a person, as we see all this verses. पवित्र आत्मा, इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. There's no doubt about it. उसमें कोई संदेह नहीं है.
but the instruction we have or the command we have, for example, if you look at Ephesians chapter 5, एफेसियों की पत्री 5 में अगर आप देखें, निकालें एफेसियों 5, and we are going to look at this in detail a little later. और कुछ देर बाद इसमें थोड़ा और गहराई से हम देखेंगे इसको। Okay, so if you look at Ephesians chapter 5, 5वां अध्याय, and it says in verse 18, 18 के में लिखा हुआ है, okay, it says, "Do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit." उसमें लिखा हुआ है कि आप मतवाले ना हो लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं। Okay, so it is a scriptural instruction. ये एक जो है परमेश्वर की वचन में से आज्ञा है कि हम पवित्र आत्मा में भरते जाएं। Right? Now, why does it say be filled again and again? क्यों ये कहा जाता है कि पवित्र आत्मा में भरते रहो? Because he is infinite, क्योंकि वो उसमें कोई भी सीमा नहीं है, right? There's no limits. उसको कोई भी सीमा नहीं। So we can be filled today और आज हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो सकते हैं, and we can be filled tomorrow as well. कल भी हम पवित्र आत्मा में भरे हो सकते हैं। While he is a person, लेकिन वो एक व्यक्ति है, but he is infinite, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं, right? There's more of his wisdom, उसका अधिक से अधिक ज्ञान है, उसमें more of his knowledge, उसका अधिक से अधिक बुद्धि है, more of his guidance, उसका ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन होता है, and more of his power, और उसका शक्ति का जो है अधिक से अधिक बढ़ता है। right? He's an infinite person. इसीलिए कहा जाता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, And therefore, इसीलिए we can be filled over and over again. इसीलिए उसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें पवित्र आत्मा में हम जो है भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भर सकते हैं। Yeah? ठीक Does है, it help? सहायता समझ में आया? Okay. Thank you. धन्यवाद। Yeah, some very interesting questions. We've had some good discussions during the break as well. ब्रेक के समय पे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल सुनने को मिला। So that's good. अच्छी बात है कि आप Okay. सवाल कर So the रहे हैं। Bible also talks about the fact that the Holy Spirit can be blasphemed. और Blasphemy. और उसके नाम को जो है दोषी ठहराना, है ना, दोषी ठहराना भी कर सकते हैं। Okay. So that मतलब means, उसके विरोध में बातचीत करना, करेक्ट, okay. उसके विरोध में बातचीत करना, पवित्र आत्मा के हाँ। विरोध में बातचीत करना। Okay. So we see that in Matthew chapter 12, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12, and the Lord Jesus is talking about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के विषय में बोलता है। And we see this right from verses 25 onwards, and yeah, we can go up to 32. 22 से लेके 32 तक हम देख सकते हैं। Okay. Now, so this whole conversation happened after the Lord Jesus delivered a person from an evil spirit, from a और demon spirit. ये विषय जो है एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से यीशु मसीह छुटकारा देने के उपरांत होने वाली बात है। Now, this person was demon possessed. He could not see, he could not speak. और ये व्यक्ति जो है दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, ये सही रीति से कुछ भी देख नहीं और समझ नहीं पा रहा था। Right. So understand the condition. He could not speak, he could not see, and it was because he was possessed by this demon spirit. और इस अवस्था को आप समझें कि वो दुष्ट ताकतों से भरा हुआ था, इस कारण से वो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था सही रीति से, और वो क्या है सही वो देख भी नहीं पा रहा था। And the Lord Jesus cast out the demon. और यीशु मसीह ने जो है इस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल दिया। And the people said, और लोगों ने ये कहा, this is the Pharisees, they said, और he casts out this demon by the power of Beelzebub. और फरीसियों ने कहा कि ये जो दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने निकाला है वो बलजबूब के दूसरा एक दुष्ट आत्मा है उसके द्वारा Okay. निकाला। So they were referring to the ruler of the demons. और वो लोग जिसके बारे में बोल रहे थे कि शैतानों का दुष्ट आत्माओं का प्रधान के बारे में बता रहे थे। And they said that he is casting out
only because that demon has given him power. और वो लोग फरीसी वो लोग बोल रहे थे कि उस दुष्ट आत्माओं के प्रधान ने उसको शक्ति दिया, इस कारण से वो निकाल पा रहा था। But in the Lord Jesus was actually anointed by the Holy Spirit to cast out demons. लेकिन सही मायने से अगर देखा जाए तो यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ को प्राप्त किया था कि इस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाले। Right. So the Lord Jesus spoke to the Pharisees and he said, "Hey, if I cast out demons by the finger of God or by the Spirit of God, the kingdom of God has come upon you." और यीशु मसीह उन फरीसियों से बोलता है कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्मा को बाहर निकालता हूं तो तुम्हारे बीच में स्वर्ग राज्य का स्थापना हो गया है। So what were the Pharisees doing? और फरीसी लोग क्या कर रहे थे? They were attributing the work of the Holy Spirit to the work of a demon spirit. और वो लोग क्या कर रहे थे? सही मायने में पवित्र आत्मा को जो अच्छाई देने की जगह पर उस स्थान में फरीसी लोग जो है दुष्ट ताकतों का प्रमुख स्थान दे रहे थे। Okay, so they did not respect Jesus. वो लोग जो है यीशु मसीह को सम्मान नहीं दिए। Right, they had seen many miracles that the Lord had done. और उन लोगों ने फरीसी लोगों ने यीशु मसीह ने किए हुए बड़े-बड़े चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार को देखा है। Right, lepers were cleansed, the paralyzed were healed. कोढ़ी चंगे हो गए थे, जो चल नहीं पाते थे वो लोग चंगे हो गए थे। So they saw all that and they saw this miracle also. उनने ये सब कुछ देखा था, उसके उपरांत ये चमत्कार भी देखा। And then they said, it is because of the evil spirit. और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि ये जो कार्य यीशु ने किया है ये दुष्ट ताकतों के शक्ति से किया है। And so the Lord Jesus has something to say about that. और इसीलिए यीशु मसीह के पास इनको जवाब देने के लिए कुछ है। He says that this was a blasphemy of the Holy Spirit. और वो कहता है ये जो है पवित्र आत्मा की निंदा है। Okay, in verse 31 we see that. 31वें पद में वो हम देखते हैं। He says the blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. और वो यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा के खिलाफ किए हुई निंदा कभी भी क्षमा के योग्य नहीं है। So we need to understand it correctly. हमें जो है सही मायने से समझना बहुत जरूरी Because है। sometimes people have fear. कभी-कभी लोगों के अंदर एक भय है। You know, I said something against the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा के खिलाफ में कुछ बोल दिया है। Is it blasphemy of the Holy Spirit? क्या मैं पवित्र आत्मा का निंदा कर रहा हूं? And will this sin ever be forgiven of me? क्या ये पाप कभी भी जो मैंने पवित्र आत्मा के खिलाफ में किया है कभी भी मुझे माफी मिलेगा? Right, because Jesus said that. Okay, one sin. So Jesus said that this sin will not be forgiven. और यीशु मसीह कहता है कि ये जो पवित्र आत्मा के खिलाफ करने वाले पाप का क्षमा कभी भी नहीं मिलेगा। Right. So we need to understand what is this blasphemy of the Holy Spirit. हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा का निंदा करने का मतलब क्या है। So you understand this situation. आप ये अवस्था को जान ले। Here were these Pharisees. यहाँ पे हैं जो फरीसी हैं। They heard the teachings of Jesus. उनने यीशु मसीह के मुख से हुआ वाले शिक्षाओं को They saw सुना है। they saw the works that he did. और उसने क्या-क्या कार्य किए हैं उसको भी देखा है। And they said that he is doing what he's doing only by the power of the evil spirit. और वो कहते हैं कि ये यीशु मसीह जो ये कार्य कर रहा है ये सब कुछ जो है दुष्ट ताकतों की सामर्थ के द्वारा कर रहा है। They didn't want to receive his teaching. उनका मन नहीं था कि यीशु मसीह के शिक्षा को स्वीकार कर लें। They didn't want to lose their position of importance in the temple and as a religious people. और वो लोग जो है उनके जो प्रमुख स्थान थे कलीसिया के अंदर उसको इस्तेमाल करना चाहते थे। Right? And they, even though they knew the truth, they said this is because of the evil spirit. उनको ये सच्चाई मालूम था फिर भी वो लोग बोलते हैं कि ये जो यीशु मसीह ने किया है ये दुष्ट ताकतों की शक्ति से किया है। Right? So this is what the Lord Jesus says. This is the blasphemy of the Holy Spirit. और इसी विषय में यीशु मसीह कहता है तुम लोगों ने जो किया है वो पवित्र आत्मा की निंदा है।
You're not respecting the Holy Spirit. आप लोग तुम लोग जो हो ये पवित्र आत्मा को सम्मान नहीं दे रहे हो, And instead of respecting, you're actually dishonoring the Holy Spirit. और उसको सम्मान, पवित्र आत्मा को सम्मान देने की जगह पर तुम क्या कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, उसका तिरस्कार कर रहे हो। And the Lord said, this is blasphemy of the Holy Spirit. और वही विषय में यीशु मसीह कहता है कि ये पवित्र आत्मा के विषय में निंदा है। Okay, so that is what is blasphemy of the Holy Spirit. उसका यही है जो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का निंदा करना क्या है। Now, if you take an example of Saul, who became Paul, और साउल के बारे में अगर एक उदाहरण ले ले जो पॉल बन गया, right? So what did he do? कि उसने क्या किया, He went against the people of God. वो जो है परमेश्वर के लोगों के विरोध में गया था। You know, we read about Stephen. हमने स्तेफानुस के बारे में पढ़ा। Stephen said, you resist the Holy Spirit. उसने, स्तेफानुस बोलता है कि तुम लोग जो है पवित्र आत्मा को रोकते हो। Immediately after that, they stoned him to death. और तुरंत उसके बाद उन लोगों ने उसके ऊपर पथराव किया और उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। And Paul, he was also there. और उस समय जो सॉल था, जो पॉल बन गया, वो उस समय वहां पर था। And he launched an attack against the church, against the people of God. और उसने, सॉल जो पॉल बन गया, वो उसने कलीसिया के विरोध में एक विद्रोह शुरू किया था। Like, he did not consider these miracles and the words, teachings of Jesus. He did not consider anything. और उसने क्या, सॉल ने जो है यीशु मसीह के शिक्षा को और उसके चमत्कारों को ज्यादा मूल्य नहीं दिया था। Right. He went ahead and he attacked and he arrested all those people. और वो आगे जाते हुए जो मसीही लोग थे उनको गिरफ्तार किया था। Yeah. So that is what he did. So did Jesus forgive Saul? क्या यीशु मसीह ने सॉल को माफ किया? Yes. Yes. Right? हाँ। So there is forgiveness. यहाँ पर प्रभु में माफी है। Because he says, you know, I was a blasphemer. Saul himself says, सॉल कहता है कि मैं खुद एक निंदा करने वाला व्यक्ति था। right? I was a sinner. मैं एक पापी था। I was a chief sinner, he says. मैं पापियों में प्रमुख पापी था। But he did that in ignorance. लेकिन उसने किया ये सब अज्ञानतावश। But when he came to know the truth, लेकिन वो जब सच्चाई को जान गया, he repented. उसने अपना मन फिरा लिया। And there was forgiveness for him. और उसको एक क्षमा मिला। Right? So when there is repentance, there is forgiveness. जब हम मन फिरा लेते हैं, वहां पे हमें क्षमा मिल जाता है। But when there's hardening of heart and rebellion, then there is no forgiveness. और जब हम अपने हृदय को कठिन कर लेते हैं और विद्रोह करते हैं, तो वहां पर क्षमा नहीं मिलता है। Okay? So that is what the Lord Jesus says here. इसी प्रकार से यीशु मसीह भी वहां पर कहता है। Okay? So in this context, he says this. और इस परिस्थिति में होकर यीशु मसीह कहता है। Okay? So we understand that the Holy Spirit can even be blasphemed against. और हम यहाँ समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा की निंदा किया जा सकता है। And so these are some things that we should not do. और ये है कुछ चीजें जो हमें नहीं करना चाहिए। Okay? So from whatever we have learned, what are some things that we are called to do and what are some things that we are called not to do? ये अभी तक जो हमने पढ़ा, सीखा, उसमें से क्या है जो कुछ चीजें हम कर सकते हैं, कुछ चीजें जो हैं हम नहीं कर सकते। Okay, so let's look at it one by one. एक करके हम देखते हैं। Well, he teaches us. वो हमें सिखाता है। He reminds us. वो हमें ज्ञान मतलब याद दिलाता है। So what can we do? Sorry. So what can we do? क्या हम कर सकते हैं? Okay. What are some things that we can do? He teaches, he reminds us. So, और क्या हम कर सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा जो है हमें सिखाता है और हमें याद दिलाता है। right? So what is our responsibility? हमारी जिम्मेदारी क्या है? How can we respond to that? हम उस obey and seek. Obey, Seek. seek him for what? Okay. So we can ask him. हम उससे पूछ सकते हैं। We can speak to him. हम उससे बातचीत कर सकते हैं। Ask him to show us. पूछ सकते हैं कि हमें दिखाएं। Ask him to reveal things to us. और गुप्त चीजों को दिखाएं करके पूछ सकते हैं। Can we ask him to teach us anything that is
apart from the Bible? क्या हम उससे पूछ सकते हैं कि जो कुछ इस वचन में नहीं है वो हमें सिखाएं? What do you think? आप क्या सोचते हैं? क्या हम ऐसा पवित्र आत्मा से, मैं थोड़ा और सरल में बोलता हूं, क्या हम पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं कि ये वचन में जो कुछ लिखा है इससे थोड़ा हटकर आप मुझे उसके अलावा मुझे आप सिखाएं? क्या ये सवाल पूछ सकते हैं? See, suppose you're a engineer, computer engineer. उदाहरण से ले लें कि आप जो है कंप्यूटर इंजीनियर हैं. Can you ask the Holy Spirit, can you teach me about computers? क्या आप पूछ सकते हैं पवित्र आत्मा से कि मुझे कंप्यूटर के विषय में सिखाओ? Okay. Suppose you want to cook something. He says no. Who's saying no? Okay, I'll come back to you, brother. मैं आपके पास आऊंगा जरूर. Okay, so suppose you want to cook something, कि अब आपको कुछ पकवान बनाना है, right? And you want to improve your cooking. और आप अपने खाना बनाने का तरीका और थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं. Right? So can you ask the Holy Spirit to teach? क्या आप पवित्र आत्मा से बोल सकते हैं आप मुझे सिखाओ? He says no. That's not good. Okay. So whoever is saying yes, just hold on. I'm coming to ask you a question. So brother, you tell me, और why should we? Yeah. जो कोई हाँ बोलते हैं अपने में थोड़ा ठहरे रहें, और ना कहने वाले भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों आप ना बोल रहे हैं? Why are you saying no? पवित्र आत्मा जो है हमारा सिर्फ आत्मिक रीति से करने वाला व्यक्ति है और हमारा आत्मिक मार्गदर्शक है. So see, you're right, brother. See, the spiritual matters are important. सही है कि आत्मिक चीजें हमें जरूरत है, and definitely we can depend on him to teach us the spiritual matters. सही में उस पर हम आसरा रख सकते हैं ताकि हमें वो पवित्र विषयों के बारे में सिखाएं, आत्मिक विषयों के बारे में सिखाएं. But you read that verse again, John chapter 14 and verse 26. यूहन्ना 14 का 26. You know, what does that verse say? वो वचन हमसे क्या बोलता है? देखेंगे, पढ़ें कोई एक भाई. 14:26. जॉन 14:26. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा. So क्या बातें? सब बातें, right? All things. All things, सब कुछ. And the second part of the word. Yeah, that is the second part of the verse. You're right, brother. Second part, he will teach you and remind you of the words. But first part of the verse, आप देखिए क्या लिखा है. He will teach you And everything. All. in the spiritual. Is the spiritual part. Yes. But my question is, सही आत्मिक विषय है, सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है, does God know everything? क्या परमेश्वर को सब कुछ ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या परमेश्वर को सब कुछ मालूम है? सब कुछ मालूम है? हाँ, आंसर टू दैट. ना पहले वो जवाब दीजिए. If you ask the Holy Spirit, I don't know anything about computer, and you ask, please teach me about the computer, how can that be possible? Yeah. So it is possible. I'll show you, right? वो दिखाएंगे we look at some verses. Sorry, I didn't understand. What was that? First day before yesterday, he was encountering with, बोलिए, ऑन कीजिए उसको. Anna, it is audible. First time I came in Karnataka, and I'm from basically north. I know only language of Bihari, Maithili, Bhojpuri, Hindi and English.
but it is my matlab view ki if I am in Karnataka, I am in 2 months, so I can at least learn Kannada also. So at least I can understand and respond in English and Hindi. And that is nature. Wherever I have to go, I have to learn. And day before yesterday, I was praying that, and suddenly I prayed yesterday. Suddenly a video came from YouTube. Someone said, how to learn Kannada. So if you pray, na, God will have plan. So this is an example. If you want to learn computer, na, somewhere, either some friends will come, this is free of course things. So it is in my life. Whenever I'm praying, na, God is giving some way to how to learn. And now I have started learning Kannada. Maybe after 1 month, I can speak with you in Kannada also. So it Yeah. may happen, it is happening. Okay, fine. So, but you're talking about a natural means. The Lord showing you a natural means, may probably guiding you to a video, guiding you to some lessons, etc. Okay. Now, I just want us to look at one verse. Okay. This is in the Old Testament. We'll go back to it again, but let me just show you that verse. 1 second. It's in the book of Exodus. Okay, Exodus chapter 31. Okay. Exodus chapter 31 and verses 2 to 5. Or maybe we can read verses 31, verses 1 to 5. Okay, Exodus निर्गमन 31 1 से लेकर 1 to 5. 1 से लेकर 5 तक थोड़ा पढ़ ले। निर्गमन 31 1 से लेकर 5। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगिरी के कार्य बुद्धि से निकालकर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पित्तल में, और जड़ने के लिए मणि, काटने में और लकड़ी पर नकाशी का काम करे। Yeah. So in this verse, we see that the Lord God is filling this person named Bezalel with the Holy Spirit. Right? हम यहाँ पर देखते हैं कि बेजलेल नाम का एक जो आदमी है, उसको परमेश्वर जो है उसकी आत्मा से भरता है। Right? He says, I have filled him with the Spirit of God. और उसमें लिखा हुआ है कि मैंने परमेश्वर की आत्मा से उसको भरा है। And then it says, in all the things that the Spirit is releasing, it says, in wisdom, in understanding, in knowledge, and all manner of workmanship. And if you look at verse 4, it says, to design artistic works, to work in gold, in silver, and bronze, in cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of workmanship. और कहता है कि उसके बाद कहता है कि सारे बुद्धि और ज्ञान में मैं उसको उस व्यक्ति को अपनी आत्मा से भरता हूँ, पीतल के विषय में, चांदी के विषय में, सोने के विषय में, बहुमूल्य पत्थरों को तराशने में, इन सारे चीजों में अपनी आत्मा के बुद्धि में मैं उसमें भरूंगा। Okay, so what is God doing there? परमेश्वर वहां पर क्या कर रहा है? He's giving Bezalel this artistic ability. और बेजलेल के अंदर क्या है? परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ये कार्यों को करने का ज्ञान भर रहा है। And he does it by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा है। Right? So, see, in our mind, we think of certain things as spiritual and certain things as not so spiritual. हम हमारे दिमाग में हमेशा ऐसे सोचते हैं, कुछ चीजों को आत्मिक रीति से सोचते हैं, कुछ चीजों को साधारण तरीके से सोचते हैं। And yes, you know, there are things that are fleshly and there are things that are not spiritual. और सही है कि कुछ आत्मिक विषय हैं और कुछ शरीर के अनुसार के चीजें भी हैं। Yeah. But the Holy Spirit is able to teach us to learn, teach us some skills, teach us some abilities, and it comes from him. और परमेश्वर जो है कुछ चीजें हमें कुछ चीजों में निपुण बनाने के लिए हमें कुछ चीजों को सिखा सकता है। वो जो ज्ञान है परमेश्वर से आता है। Right?
So, so our conclusion is that God, who knows everything, by the Spirit, He can teach us. और ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जो हमें सिखाता है उसके द्वारा से सिखाता है। Yes, He will teach us the word, the revelation, the understanding of spiritual matters. आत्मिक चीजों के बारे में वो हमें सिखाएगा जरूर। He will teach us and remind us about the words of Jesus. और परमेश्वर के यीशु मसीह के बातों के बारे में, विषयों के बारे में हमें वो याद जरूर दिलाएगा। But we don't have to limit God. और लेकिन हमें जो है एक सीमा के अंदर हमें हमारे परमेश्वर को खड़े करने की जरूरत नहीं है। If He can teach Bezalel how to make those carvings and how to work with gold and silver, अगर बेजलेल को परमेश्वर की आत्मा डालकर किस प्रकार से उसको नक्काशियां पत्थरों के साथ जो कार्य करना है, लकड़ी के साथ कार्य करना है, उसके चांदी सोने के साथ कार्य करना सिखा सकता है, well, God can teach us also, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भी सिखा सकता है। right? So we don't have to limit God. हमें जो है उसको जो है एक छोटे रूप में सीमित नहीं करना है। Okay, so that's why we're saying that the Holy Spirit, He's the teacher. He can teach us all things. इसीलिए हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है एक सिखाने वाला व्यक्ति है और वो हमें सारी चीजों को सिखा सकता है। And yes, you know, He has already given us natural ability to learn. Like Say- books are there and videos are there to learn. सही है कि हमें जो है साधारण तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हमारे अंदर जो है ज्ञान, बुद्धि सब कुछ दिया है ताकि हम कई विषयों के बारे में, किताब, चीजों के बारे में, उसके Yeah. बारे में हम सीख सकते हैं। Yeah, but He is able to show us and teach us if we ask Him. और वो उससे अगर हम पूछें तो हमें वो सिखा भी सकता है। Maybe, administration or government ability. हो सकता है कि जो गवर्नमेंट के काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के काम करना है, उसके विषय में भी प्रभु हमें सिखा सकता है। Creative things that we और do. व्यत्यस्त चीजें जो हटकर चीजें हैं, उस चीजों को भी हमें प्रभु सिखा सकता है। The Lord will teach us. वो परमेश्वर सिखा सकता Okay, है। so He's a teacher. वो एक शिक्षक है So how do I relate to Him, और किस प्रकार से मैं उसके साथ संबंध बना सकता हूँ as a student? एक छात्र के रूप में। Right? I go to Him and I ask Him, Holy Spirit, I don't understand this, but you teach me. हम ऐसे पूछ सकते हैं कि पवित्र आत्मा, मुझे इस विषय में समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपया करके हमें समझाएं। And He will show us and teach us. और वो हमें दिखाएगा और सिखाएगा। Right? So we looked at one more thing. Okay, He teaches, He reminds us, and He also witnesses to us and guides us. और एक और चीज हम देखेंगे कि वो हमारे को एक गवाही देगा, सिखाएगा और हमें गाइड अस, टीच अस एंड He also testifies and He guides us. और वो हमारा मार्गदर्शन भी करेगा। Right? So all of us need guidance. हमारे जीवन में मार्गदर्शन की जरूरत है। Right? At some point in our life, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्थान में हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन की जरूरत है। right? We need guidance. We need the wisdom of God. हमें एक मार्गदर्शन की जरूरत है, उसके ज्ञान की जरूरत है। So we go to Him and ask Him, Holy Spirit, you teach me, you guide me. और हम ये करते हैं कि पवित्र आत्मा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पवित्र आत्मा, तुम मुझे सिखाओ और आप मुझे मार्गदर्शन करो। Right? So what are some areas in which we need guidance? और क्या वो क्षेत्र है जहां पर हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन की जरूरत है? Okay. Okay. वचन के बारे में, okay, कुछ we need some understanding. So He guides us. What else? परमेश्वर के वचन के बारे में सीखना है तो वो हमें मार्गदर्शन करता है। Huh? कुछ Okay. नया सीखने के लिए। Okay. Learn something new. Oh. Yeah. डेली चॉर्स। Can you explain a little more? Daily क्या करना है? और थोड़ा उसके बारे में स्पष्ट कर सकते हैं आपके सवाल का? He teaches everything of the day ठीक to day है, life. लेकिन आप बताया ना, like Daily. थोड़ा और किस प्रकार से वो, थोड़ा और कुछ उदाहरण के साथ बोल सकते हैं दिनचर्या के बारे में, क्या दिनचर्या के बारे में सिखाता है?
we don't know when to start, how to study or learn. He can teach us how to do that. Okay, okay, okay. Let's say you go out of Bible college. What is What is the question? Okay, in what areas do we need guidance? हमें What all areas in our life? किस किस हमारे जीवन के किस किस क्षेत्र में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए? You tell me. You tell me one. एक बताओ, एक बताओ, नहीं, एक बताइए. स्पष्ट रूप से एक गलत, we are going into a wrong path. He can give us a alarm. Workplace में क्या? what kind of guidance do you need? Okay, okay. So workplace. कार्य के जगह पर, You are in an office. आप ऑफिस में हैं, You need the guidance of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन की जरूरत है. In what way? किस प्रकार से? What to do, what not to do, क्या करना है, क्या नहीं करना है, how to speak, what not to speak. क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है. If there is a problem with your colleagues or problem with your boss, और आपके साथ सह कर्मचारी के विषय के बाद साथ कुछ परेशानी है, या आपके बॉस के साथ कुछ परेशानी है, we need guidance. हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा की Right. मार्गदर्शन की जरूरत है. How to solve. उस विषय को कैसे उत्तर प्राप्त करें. Okay, just think. What सोचें. else do we need guidance for? सोचे कि और किस किस विषयों में हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन की जरूरत है. Right, I understand. But you tell me specifically. वो सब है, लेकिन एक चीज आप बताइए. हाँ? Yeah. So you tell me, what is it? Okay. स्पेसिफिक. Check. Okay, I'll tell you. As a pastor, पासबान होने के चलते मुझे परमेश्वर की आत्मा की मार्गदर्शन की जरूरत है. what way does a pastor need guidance? एक पासबान किस प्रकार से मार्गदर्शन की जरूरत है? To give good sermon. अच्छा एक प्रचार देने के लिए. Okay. और मतलब discern meaning, What do you say? discern people. लोगों को परखना means to discern whether they are good or bad. You meant truth or not? सच बोल रहे हैं So कि whether नहीं बोल people रहे हैं? are saying the truth or not, they come and say, Pastor, help me, I need this, I need that. Are they saying the truth? I need guidance, discernment. पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन की जरूरत है. जब लोग आके मुझसे बोलते हैं क्या ये Okay. सच है या गलत है, उसमें समझने में मार्गदर्शन की जरूरत है. Okay. In counseling, okay. परामर्श में. So somebody comes and tells me, I have this problem. Pastor, you look into the word of God, you pray, you tell me. Right? और- Now I need, yeah. और कभी कभी पासबान के चलते लोग आके बोलते हैं कि मुझे ये परेशानियां हैं, ये विषय है, इस विषय में मुझे थोड़ा पवित्र आत्मा क्या मुझसे बोलना चाहता है, कृपया करके बताएं. Right? So I need guidance. मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है. Okay. So how many married people are here? कितने शादीशुदा लोग हैं? Okay. A lot of Lot of married heart. people. Two hands. Two hands Okay. up. Okay. So as a married person, okay, as a married person, for your family, do you need guidance or not? शादीशुदा होने के चलते क्या आपके शादीशुदा जीवन में पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन की जरूरत है? Yeah. So we'll ask the married people, what kind of guidance would you want? हम शादीशुदा लोगों से पूछेंगे. शादीशुदा जो नहीं है मत बोलना. Yeah. शादीशुदा लोगों से पूछेंगे कि आपको पवित्र आत्मा की क्या मार्गदर्शन की जरूरत है. Sorry, एक minute. Yeah. How to spend money? Okay. शादीशुदा जीवन में पैसा कैसे खर्चा करें, Right? How to manage money? किस How to, प्रकार से because पैसे का you नियंत्रण have करें. expenses. You have to आपको- run a family. आपको खर्चा है, शादीशुदा जीवन को चलाना है. Right? What else? और क्या शादीशुदा लोग How to build रिलेशनशिप एक minute, एक 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 करके minute. एक एक करके How to सुने. build relationship मतलब between them.
Hmm. Okay, are you listening? All the unmarried people listen. Single people. और जो शादीशुदा नहीं है वो लोग कृपया करके सुन लें। Some important things are being discussed here. हाँ, यहाँ पे बहुत ही बहुमूल्य चीजों के बारे में बातचीत हो रहा है। You're getting a free lesson on marriage. हाँ, मुफ्त Okay. में आपको पवित्र आत्मा मतलब शादीशुदा जीवन होने का अनुभव मिल रहा है। Right? So, sister is saying how to build a relationship. एक Right? दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ एक दूसरे के साथ कैसे So- संबंध को रखें। Right? So, in a marriage, it's husband, wife, it's about in-laws, right? Mother-in-law, father-in-law, son-in-law. Lot of relationships are there, right? So, you need guidance. और शादीशुदा जीवन में पति पत्नी के बीच में सास ससुरों के बीच में नात बहनों जो भी है Right. सबके बीच में जो है Exactly. जो रिश्ता होना चाहिए So, उसका yeah. मार्गदर्शन चाहिए। In marriage, there are also problems. Yes और or no? और शादीशुदा जीवन में परेशानियां होता Yeah. है, हाँ या ना? Yeah, there are conflicts. डोंट शादीशुदा जो नहीं है वो मत Okay, बोलना। so there are conflicts, वहां पे मुठभेड़ होते हैं, गलत disagreements, विचार धारणाओं में परेशानियां होते हैं। right? Sometimes conflicts, sometimes there are fights. कभी कभी जो है गलत धारणाएं होते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं And you need guidance. और पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है। How to overcome these conflicts. और किस प्रकार से ये जो तर्क वितर्क हो गया उसमें से Okay, निकल brother. सके। Brother, yeah, यहाँ ध्यान दें, listen. Okay. इधर देख लें थोड़ा। So, hey, we are having आपसे this. बोला जा रहा So we are having these problems. We are having these conflicts. और ये परेशानियां होता है So we need to overcome them, और उसको पार होना है। right? I need to keep my heart clean. मुझे अपने हृदय और सोच विचार को निर्मल रखना है। I don't want to have bitterness and anger all the time. मुझे गुस्सा होकर जीना और Anger. एंगर इज गुस्सा, Yeah. And बिटरनेस इज um, कड़वाहट। थैंक यू। Right. कड़वाहट मनोभावना नहीं रखना है। I don't want to have that as a husband and as a father, and definitely not as a pastor. और एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, सही में एक पासबान के रूप में वो मेरे मन में ऐसे चीजों को विषयों को See, नहीं रखना है। You understand, I'm a human being. समझे कि हम जो है एक मनुष्य हैं। I might be a pastor, मैं पासबान हो सकता हूँ, but I'm married, मैं शादीशुदा भी हूँ and I have the same conflicts the others have. और सारे लोगों के परिवार के अंदर जो तर्क वितर्क होता है वो मेरे पास भी है And I need guidance. और मुझे पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन की अगुवाई की जरूरत है। And can the Holy Spirit guide me? क्या पवित्र आत्मा उस जगह पे मेरे मार्गदर्शन कर सकता है? Of course, He can. हाँ, वो कर सकता है। So these are areas in our own lives. As a student, we need guidance. और एक छात्र के रीति से मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है। Right? As a person, as a young working professional, I need guidance. और जवान काम करने वाले व्यक्ति के समान मुझे एक मार्गदर्शन की जरूरत है। Right? So the Holy Spirit will help us. और पवित्र आत्मा जो है मुझे सहायता करेगा। Right. Yeah. And wife with husband, husband and wife, both ways. Right? और पति पत्नी के प्रति हो या पत्नी Yeah. पति के प्रति हो, दोनों So- के जीवन में मार्गदर्शन की जरूरत है। So the beautiful thing is this. एक अच्छी बात ये है, The Holy Spirit is the guide. ये पवित्र आत्मा जो है मेरा अगुवा है, मार्गदर्शक है। He will guide us into the truth. वो मुझे सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करेगा He will guide us into freedom and liberty. और वो छुटकारा और खुशी की ओर मुझे अगुवाई करेगा। So what do I have to do? मुझे क्या करने की जरूरत है? I need to receive guidance. मुझे वो उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करने की जरूरत है। We can ignore the guidance that the Holy Spirit brings to us. मैं पवित्र आत्मा मुझे जो मार्गदर्शन देता है उसको मैं तिरस्कार कर सकता हूँ I can resist the guidance, और वो जो मार्गदर्शन पवित्र आत्मा करता है उसको मैं रोक सकता हूँ। or I can be so full of pride and anger that I don't want to hear the guidance. और मैं अहंकार और गुस्से से भरा हो सकता हूँ कि मैं उसके मार्गदर्शन को ना सुनूं। Right? But as a believer, I have the privilege
of being guided by the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर के बच्चे होने, विश्वासी होने के हिसाब से मुझे ये सौभाग्य है कि मुझे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिलता रहता है. Okay, so we looked at some things that we can do, that as we humble ourselves and receive teaching, receive guidance from Him. और हमने देखा कि हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को नम्र कर उसके मार्गदर्शन को स्वीकार कर सकते हैं. And when He speaks, we have to listen. और वो हमसे जब बातचीत करता है उसको ध्यान से सुनना है. Right? So what are some things that we should not do? क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? We should not lie to the Holy Spirit. हम जो है पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना. Sometimes we think that because we don't see Him, that we can lie in our hearts to God. कभी कभी सोचते हैं कि क्योंकि हम उसको देखते नहीं है, इस कारण से हम उससे झूठ बोल सकते हैं. But He knows everything. लेकिन वो सब कुछ जानता है. Peter says, you've not lied to men, but you've lied to God and you've lied to the Holy Spirit. पतरस कहता है कि you don't know? You've not lied to man, but Okay. you've lied to God. तुम जो हो मनुष्यों से झूठ नहीं बोल रहे हो, परमेश्वर और पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो. Right? So we should not lie to the Holy Spirit. हमें जो है पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना है. We should not resist the Holy Spirit. हमें जो है उसको रोकना नहीं है. We should not quench the Holy Spirit. और उसे बुझाना भी नहीं है. Right? The Holy Spirit is leading you to do something. Don't quench the Holy Spirit. अगर पवित्र आत्मा कुछ चीजों को करने में आपकी मार्गदर्शन कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, उसको खत्म ना कर दे, उसको बुझा ना दे. Right? So these are some things that we have learned today. आज हमने इस विषयों में सीखा. So as we close today, I'd like us to pray. और जैसे हम यहाँ पर इस विषय को खत्म करते हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग प्रार्थना में जाएं. Like, pray and open up our hearts to God the Holy Spirit. और प्रार्थना करें और हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा की ओर खोलें. Right? He can be loved. He expresses love. He loves us. और वो हमारे प्रति उसके प्रेम को दर्शा सकता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है. Right? He knows us inside out. और हमारे अंदरूनी अवस्थाओं को और बाहर की अवस्थाओं को वो जानता है. He knows everything about us. और वो हमारे विषय में सब कुछ जानता है. So there's no need for us to hide anything from Him. और हमें कोई भी जरूरत नहीं है कि हम उससे कुछ भी चीजों को छुपा दे. So why don't we just begin to speak to the Holy Spirit? क्यों ना हम उस पवित्र आत्मा से बातचीत करना शुरू करें. Just talk to Him. Lord, you help me. और हम बातचीत करें, प्रभु पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करें. Lord, these are things that I have tried to hide from you. और बातचीत करें कि प्रभु पवित्र आत्मा, हमने ये सारी चीजें आपसे छुपा के रखने की कोशिश किया. Lord, these are the times when I have tried to resist you. और पवित्र आत्मा से बोलें कि ये सारी चीजें हैं जो मैंने रोक कर रखने की कोशिश किया. And I don't want my heart to be hardened against you, God. और प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को मैं आपके प्रति कठोर नहीं करना चाहती. I want my heart to be yielded to you. और मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय आपके प्रति भूख से रहे. Let me be sensitive to your leading. और मैं आपके जो अगुवाई है, मार्गदर्शन है, उसके विषय में संवेदनशील रहूं. Yeah, let's just pray to Him. And if you want to stand up and pray, you can stand up and pray as well. अगर आप अपने स्थान में खड़े होके प्रार्थना कर सकते हैं, खड़े होके भी प्रार्थना कर सकते हैं पवित्र आत्मा के सामने. Hallelujah. We praise you, Father. We thank हालेलुया. you. धन्यवाद प्रभु जी. We thank you, Holy Spirit. Lead धन्यवाद us, Lord. पवित्र आत्मा. Come, Holy Spirit. Have your way, धन्यवाद Jesus. Have your पवित्र way, आत्मा Lord. आपकी Have काम your को way, करें. Lord. पवित्र आत्मा आपके Yes, काम Lord. को करें. We need you. हमें Lord, आपकी we जरूरत need you, God. We are dependent on you, हम God. आप पर निर्भर Meet हैं. with us, Lord. Meet हमसे with us, मिले God. पिता पर. Meet with us, oh Father हमसे God. मिले पवित्र Hallelujah. आत्मा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And if you're feeling weary or tired or fearful, just ask the Spirit of God to fill you one more time. और अगर आप निर्बल अपने आप को प्राप्त करते हैं, डर भयभीत प्राप्त करते हैं, थके प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा से बोले कि पवित्र आत्मा मुझे एक और बार आपकी सामर्थ के साथ, आपकी शक्ति के साथ भर Yes, दे Lord. पिता. Fill us, oh God. Fill us with your हमें Spirit. भर दे पवित्र आत्मा. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद पवित्र आत्मा.
ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखाबारा बशिकिरियाम तो रोकोमांदा डबरा बशिकदारा Yes, oh God. रीदरा बला बशमदल प्रौडी मनहरग बसिया Yes, Lord, we thank you. राखाबारा। Just ask the Holy Spirit to create a hunger in your heart for more of Him. और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि आपके हृदय में उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा एक भूख को उत्पन्न करें, A hunger for the Word of God. उसके पवित्र वचन की ओर एक भूख और प्यास, A deep interest in the Word of God. और ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा उसके वचन के प्रति इच्छुक हो जाएं, A hunger for the ways of the Lord Jesus. और उसके मार्ग के लिए हम भूखे हो जाएं, And a deep hunger for the work of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए हमारे अंदर भूख उत्पन्न हो जाए। And say, Lord, let there be a great hunger and deep interest in these things. ओए प्रभु, आपसे प्रार्थना करें पवित्र आत्मा आपके प्रति एक गहराई से एक भूख को उत्पन्न कर दे। Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद God. प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ More of you, Jesus. ओ More of you, धन्यवाद Lord. प्रभु जी, और भूख उत्पन्न कर दे, और भूख उत्पन्न करें आपके प्रति, आपकी आत्मिक विषयों के प्रति भूख उत्पन्न करें पिता। ओ हालेलुया, Lord, let everything that is hardened, oh God, be broken, Father. ओ Yes, Lord, let me be yielded, oh God. Let me be yielded, oh God. Yielded to you, Father God. Speak to me, oh God. बातचीत करें, बातचीत करें हमसे, हमसे बातचीत करें, हमसे बातचीत करें, हमसे बातचीत। Just ask the Lord, Lord, you teach me how to listen to you and how to receive from you. और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि मुझे सिखाएं प्रभु कि किस प्रकार से मैं आपको सुन सकूं और आपसे किस प्रकार से मैं सीख सकूं। And even right now, be aware of what the Holy Spirit is putting in your heart. और उससे प्रार्थना करें कि आप मेरे हृदय में क्या अभी डाल रहे हैं उसके बारे में मैं ज्ञानवंत हो जाऊं। Yeah. Just say, just be aware of the verses that He's putting in your heart, scripture that is putting in your heart. और पवित्र वचन को जो आपके हृदय में डाल रहा है उसके बारे में ज्ञान मिल जाए आपको। Just be aware of the pictures that He's showing you right now. और वो पवित्र आत्मा जो वो चित्र आपके सामने दिखा रहा है अभी, उसके बारे में आप ज्ञान से भर जाएं। Hallelujah. We thank you. हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। Receive it, God. Receive it. Father, we thank you, Lord, for this day, Lord. धन्यवाद प्रभु जी इस दिन के लिए। Lord, even as we come to the end of this session, we pray that what we have learned, that you will seal it in our hearts by your Spirit. और प्रभु जी हमने जो आपके वचन में से आज सीखा उसको आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ से उसको सील कर दे पिता परमेश्वर। Yes, continue to speak to us, Lord. और ज्यादा हमसे बातचीत करें And पिता। remove all the barriers, Father God. और जो कुछ दायरे हमारे सामने रखे हुए हैं उन सबको हटा दे पिता परमेश्वर। Remove that sin that rises up like a barrier to hear your voice. और आपके वचन को, आपके बातों को सुनने के लिए रुकावट के रूप में जो रुकावट दीवार हमारे सामने खड़ी हो जाती है, वो पाप का दीवार जो हमारे सामने खड़ा होता है उसको आप हटा दे पिता परमेश्वर। And wash us and cleanse us even right now. और अभी के अभी हमें शुद्ध कर दे और धो दे पिता परमेश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। We give you all the praise and all the glory. हे प्रभु, आपको पूरी महिमा और स्तुति और आदर आपको देते हैं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से हम मांग लेते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. प्रभु के नाम की महिमा हो। I think that's a question here, Brother Thomas. एक मिनट और बैठ जाएं। It is unknown that the disciples performed any miracle during the time of Jesus. Well, actually, the Bible says that they did perform miracles, many miracles. So the Lord sent them out. He sent them out in teams to heal the sick, to raise the dead, to cleanse the lepers, and they did that. And Oh. also to cast out demons. So they did that.
उनका थॉमस भाई का सवाल है कि वो सही मायने से हमें मालूम नहीं होता है कि यीशु के समय पर जब यीशु इस धरती में थे क्या उनके चेले कोई चमत्कारी कार्य किया था कि नहीं किया। So- उसका जवाब ये है कि सही मायने में यीशु मसीह ने दो लोगों के साथ टीम बनाकर उनको सेवकाई के लिए आगे भेजा था जहां पर वो लोगों ने कई प्रकार के चमत्कार किए थे। Yeah, you can read Luke chapter 10, and it talks about how he sent out the 70 and how they did many miracles in his name. और आप लूका रचित 10 में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उनको आगे भेजा था और उन लोगों ने क्या क्या कार्य प्रभु के नाम से किया था। And yes, what we read in the book of Acts that the disciples did, whatever they did it by the power of the Holy Spirit. और जो कुछ प्रेरितों के काम में हम देखते हैं वो भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरकर उन लोगों ने किया था। But Luke chapter 10 and verse 19 says that he gave them authority over the powers of darkness, over sicknesses and all that. और लूका रचित समाचार 10वें अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको दुष्ट ताकतों के ऊपर, रोगों के ऊपर अधिकार दिया था और उसके बाद भेजा। Right. Luke chapter 10 verse 19. लूका रचित समाचार उसका 10वां अध्याय उसका 19वां पद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। Right. I hope that helps. मैं विश्वास करता हूं कि वो आपको समझने लायक होगा। Right. Thank you. धन्यवाद। We'll catch up tomorrow. और कल जरूर